फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। This industry is lot more than that. Writers की मेहनत, प्रोड्यूसर के पैसे, डायरेक्टर्स की क्रिएटिविटी, एक्टर्स के प्रेजेंटेशन, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, सिंगर, स्क्रीन प्ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. It's not just light camera and action, you know. It takes months of hard work of hundreds of people to make a movie, and the way we as audience appreciate it makes it a hit or a flop. During the initial era of Bollywood, the stories were original, songs were soulful, and the audience got to taste the versatility of the actors. But in recent years, we have seen a slump in this industry. A lot of things went south. So in this episode, we will be discussing about those mistakes that Bollywood have been constantly making, and as a result, real talent dies before blooming, good movies are finished even before they are released, and writers and singers just play remake and remodel. We as audience have roles of fanboys and fangirls to play after all. So stay till the end with us. If you agree, then do give a thumbs up, share and subscribe to our channel. So now, lights, camera and action! Everyone in this world likes a bit of appreciation for their work. So for this Indian cinema, we have award shows like Filmfare, IFA, Stardust, Starscreen and many more. Filmfare, or the famous Black Lady, is regarded as our own Oscars. But in the recent years, we have seen a downfall in the quality of this award show. Last year, Gully Boy bagged 14 awards in total. We don't think it was a bad film, but did it have the quality of winning so much in front of movies like Super 30, Kesari, Article 15, Uri or Chichore? We don't think so. And so did the audience, as they were trending #boycott Filmfare the day after it was declared. Lately, the only legit award show we have is our National Film Awards, which has no influence of sponsors, power or money. एक अच्छी ओरिजिनल मूवी के लिए काफी लोगों की क्रिएटिविटी और हार्डवर्क लगती है, और उसी को सराहने के लिए ये अवार्ड्स दिए जाने चाहिए, ना कि इसलिए क्योंकि कोई शो स्पॉन्सर कर रहा है, पैसे दे रहा है या शो में परफॉर्म करने आ रहा है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बेसिस पे जज ना करके परफॉर्मेंसेस को एसेस करना चाहिए. अगर एक अवार्ड से किसी का मोरल बूस्ट होता है, तो किसी का मोरल डाउन भी तो होता है. So let's stop discriminating and start acknowledging the real emerging talents. Lately, we have seen people debating over the problem of nepotism in Bollywood and how has it influenced the industry quite negatively. But we have a different opinion, which is the power exploitation. It has been done by various nepo kids such as Alia Bhatt, who called the director of Kalank and asked if he doesn't cast her, then she will be upset. The first time I made a call to a director, I called him up and I called Karan up and I said, listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film. Okay. Like, I really want to be a part of this film. Also, to get Dear Zindagi, which was given to another actress, but after Karan Johar, who is godfather of Alia Bhatt, intervened and asked Gauri Shinde to cast Alia Bhatt instead. We also have seen the self-made and one of the finest actor of India, Amitabh Bachchan, involved in destroying career of legendary actor late Kader Khan. We call him Sarji, और सबने सरजी बोलना शुरू कर दिया था, तो मेरे मुंह से निकला नहीं सरजी. वो सरजी का न निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से. As Kader Khan himself explained in one of his interview of how he was not getting any movies because he didn't address Amitabh Bachchan as sir. पैसे और पार की तो बात ही कुछ अलग है, पर क्या इस इंडस्ट्री में इसका दर्जा टैलेंट से भी ऊपर है? जवाब ना है. पर पैसे की ताकत तब दिखती है जब कोई शॉर्ट बजट मूवी और बिग बजट मूवी के बीच में थिएटर की स्क्रीन खरीदने को लेकर सवाल उठती है. Big budget movies with big star cast means more screen and more show times, which equals to more audience and more watch hours, resulting in big box office hit, जैसे कि बजरंगी भाईजान और मसान के केस में हुआ था. दोनों ही मूवीज अच्छे थे, पर 8 करोड़ की मूवी मसान बॉक्स ऑफिस में कुछ ही दिन चल पाई और नतीजा बस 6 करोड़ की कमाई, जबकि बजरंगी भाईजान ग्रॉस 626 करोड़ वर्ल्ड वाइड बाय द एंड ऑफ इट्स 7th वीक. चाइना में लगभग 65,000 स्क्रीन्स हैं, पर इंडिया जैसे बड़े आबादी वाले देश में भी सिर्फ 9,000 प्लस स्क्रीन्स हैं.
तो इट्स डेफिनेट कि अगर स्क्रीन बढ़ा दी जाएंगी तो हर मूवी को एडिक्वेट स्क्रीन टाइम मिल पाएगा और बिग बजट मूवी के चलते भी शॉर्ट बजट मूवी सफर नहीं करेंगी। हमारे देश के एक्टर्स को अपने क्राफ्ट और टैलेंट पे फोकस करना चाहिए और उन्हीं के हिसाब से उनको मूवीज मिलनी चाहिए और हम एक ऑडियंस के हिसाब से फिल्म को उनके स्टार कास्ट, ब्रांड वैल्यू या इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं बल्कि उनके क्वालिटी के हिसाब से देखने चाहिए। रेस 3 और दबंग 3 जैसे मूवीज ने 100 करोड़ से ऊपर बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट किया, पर कुछ बेहतरीन मूवीज जैसे मसान, तुम्बाड़, न्यूटन बॉक्स ऑफिस पे नहीं चले। We all like a trip down the memory lane. Oof, the feeling of nostalgia. But that shouldn't stop new things from coming our way, right? This brings us to the next problem. Remake, sequel, dub. Bollywood तो इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। ओरिजिनल कंटेंट्स और क्रिएटिविटी की तो इससे अकाली पड़ गई है यहाँ। हम ना कि सिर्फ पुराने मूवीज का रीमेक करते हैं पर दूसरे इंडस्ट्रीज के मूवी तक को नहीं छोड़ते हैं। सीक्वल्स के चक्कर में अच्छी बनी बनाई मूवी का भी हाल बेहाल कर देते हैं और रीमेक के चक्कर में ओरिजिनल्स का। फॉर एग्जाम्पल हिम्मतवाला, one of the most famous movie of 1980s, starred by श्रीदेवी and जितेंद्र, जिसका रीमेक 2013 में अजय देवगन और तमन्ना ने किया था, which turned into a big box office flop. तब की ऑडियंस और आज की जनता में काफी फर्क है और शायद वही एक्टर्स को लेके उसी बजट में कोई और ओरिजिनल मूवी बनाते तो शायद बेहतर रहता। मूवीज लाइक हाउसफुल सीरीज, क्या कूल है हम और कई सारे जिनके पहले मूवी तो अच्छी रही पर सीक्वल्स बर्बाद। बॉलीवुड ने काफी सारी क्लासिक ओरिजिनल मूवीज दिए हैं, जिसका सीधा ये मतलब है कि हमारे पास कभी अच्छे राइटर्स की कमी नहीं है, बस उन्हें अच्छी तरह से गाइडेंस और क्रिएटिव स्पेस मिलना चाहिए। अगर इंस्पिरेशन ही चाहिए तो हमारा माइथोलॉजी और हिस्ट्री भरा हुआ है इंटरेस्टिंग कहानियों। हाल ही में हमने देखा असुर, जो कि एक माइथोलॉजिकल इंस्पायर्ड सीरीज थी और अपने यूनिक वे ऑफ पोर्ट्रेयल की वजह से ऑडियंस में काफी अप्रिशिएट किया गया। We also have many award-winning authors and novelists जिनके कहानियों पे बहुत अच्छी मूवीज बन सकती है। We should start giving chances to our own talent rather than copying from others. Now moving on to the next problem. To create the interest of audience for an upcoming film, filmmakers often focus on promotional part while the content is weak. These promotional activities are not just limited to trending hashtags on Instagram, throwing numerous challenges on social media, meet and greets, etc. But making a dhamaka dance number, catchy song and tricky presentation of movie trailer are all part of this promotional activity. The Bhatt campaign is infamous for raising temperatures of their films with bold scenes and sizzling chemistry. Flaunting fake love affairs and relationships even are a part of this stunt. बस इतना ही नहीं, काफी एक्टर्स को अपने मूवी रिलीज से पहले ही अपने पिछले जिंदगी की दुखद घटनाएं याद आ जाती हैं, जैसे कि कंगना रनौत को अपने हर मूवी से पहले कोई ना कोई सेंटिमेंटल सेल्स स्पीच देनी ही होती है। बहुत सारे एक्टर्स ने इंटरव्यू में ये तक बोला है कि 20% वो एक्टिंग करते हैं एक मूवी के लिए एंड 80% प्रमोशन, जो कि सिनेरियो नहीं होना चाहिए। वी नो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, पर ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलना एथिकली काफी रॉन्ग है। So focus on the content rather than focusing on performing promotional stunts. और इसी के साथ हम अपने आखिरी पॉइंट में आते हैं, जो कि है इंडियन सिनेमा की सेंसर बोर्ड। 5 ब्लैक फ्राइडे, अनफ्रीडम, उमरता जैसे काफी मूवीज हैं जो सेंसर बोर्ड की वजह से या तो अटक गई या तो बहुत खराब वे में पोर्ट्रे हुई। सेंसर बोर्ड हर वो सीन ट्रिम या कट कर देता है जिसमें कोई फिजिकल इंटीमेसी, अब्यूसिव लैंग्वेज या ब्लड सेट दिखाया जाता है। वो ये भूल जाते हैं कि सिनेमा इज क्रिएटेड टू शो द मिरर टू आवर सोसाइटी। सो जब हमारे सोसाइटी में फिजिकल इंटीमेट होना, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, ब्लड शेड या मारधाड़ करना आम बात है, तो बड़े पर्दों पर क्यों नहीं दिखाया जा सकता। सेंसर बोर्ड के ये कट्स के वजह से काफी क्रिएटिव माइंड रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से फिल्मों में ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी लैक करती है। Movies are mostly inspired from real life, so why not portray the wrong as wrong and the right as right? Be it a pedophilic character as Nagraj Manjule in The Silence or misogynistic, problematic and sexist character like Kabir Singh. Don't they actually exist in the society? Haven't we seen boyfriend and girlfriends fighting like cats and dogs in public? Or are we unaware of the fact that India still doesn't acknowledge marital rape? Don't you think it's high time we normalize these topics and neutralizing them? किसिंग हो या इंटीमेसी हमें हमारे मंदिरों के दीवारों पे तो दिखानी है, पर मूवीज में छिपानी है। यहाँ पे तो एज रिस्ट्रिक्शंस भी नाम के हैं। So why not strengthen those rules than trying to brush these off the carpet? वी नो कि सेंसरशिप इंपॉर्टेंट है, पर तब
जब कोई मूवी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हो। तब सेंसर बोर्ड को उस कम्युनिटी के हेड को ला के मूवीज दिखानी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली कट्स करने चाहिए। हमने पहले देखा था कि पद्मावत एक र्यूमर की वजह से सेंसर बोर्ड में काफी देर अटकी रही, जिसे कम्युनिटी हेड्स को दिखा के सॉल्व किया जा सकता था। अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी गुंजन सक्सेना में कुछ ऑब्जेक्शनेबल सीन थे, जिनमें इंडियन एयरफोर्स को डेरोगेटरी वे में दिखाया गया था, जबकि ओरिजिनल लाइफ में कुछ और ही हुआ था, which is definitely wrong. So this is where the censor board comes into the scene. जनता जनार्दन है। इन द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। हर फ्राइडे को एक नई मूवी आती है, कोई स्टार बनता है और कोई बस एक्टर बन के रह जाता है। सबको बोलते सुना होगा कि नेपोटिज्म की वजह से काफी एक्टर्स फेमस होते हैं, पर क्या ये सच है? ऑफ कोर्स नॉट। राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना हो या यशराज चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा टिक नहीं पाए इंडस्ट्री में। We all have seen stars like Hrithik Roshan, Kareena Kapoor Khan, Ranveer Kapoor, Sanjay Dutt and many more, who even after being the star kids work really hard to give their best and justify each character they play. Competition हर इंडस्ट्री में होती है, पर बॉलीवुड में खुले आम दिखती है। तो टैग्स लगाना बंद कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए टैलेंट को, ना कि ब्रांड वैल्यू को। We as an audience can make or break any actor. We should choose wisely and our choices should be based on talent and performance of the actor in a particular movie, not because of he or she has become a brand value or belongs to any particular family. For example, एक outsider जैसे कार्तिक आर्यन अगर कल से खराब मूवीज बनाने लगे एंड हम उनकी मूवी इसीलिए देखने जाए क्योंकि वो एक आउटसाइडर है एंड उनका कोई गॉडफादर नहीं है, और दूसरी तरफ हम एक टैलेंटेड एक्टर जैसे ऋतिक रोशन की मूवीज इसीलिए ना देखें क्योंकि वो एक नेपो किड है और वो रोशन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो एथिकली काफी रॉन्ग होगा। सो बी स्मार्ट एंड डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो अ ट्रेंड। और इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।